Greetings everyone. I Garima welcome you all to the second session of spoken English of the summer camp of Army Public School Old Camp. So it is the second day, and with this you must have understood the theme for today. Yes, the theme is my favorite toy. As the summer camp is for students of class 6th and 7th, so I'm getting down to their level. But for speaking English, you don't need to have any particular topic. It should be that you should be able to speak on any given topic, right? So other people who also want to get command on this, improvise their English, they can very well choose any of their favorite stuff and start speaking on it, right? So I'm coming back, children. We are going to talk about these, as well as I'm going to give you certain tips that what all you can do to improvise your English or improvise your soft skills, right? So let us begin without any further delay. I hope you are doing well, and definitely the prayers, the best wishes are for everyone. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, है ना? Everyone should be healthy. We should always pray for everyone. This you should all practice, that whenever you pray for Mother Earth, pray for nature, pray for everyone, pray for humanity. We are suffering very badly, isn't it? So right, let's start our class, and let me keep them down. Their chance will come later on, and let's begin. Yeah. So yeah, I'll pick it up from yesterday. I told you that when a child is born, the child is listening to whatever sounds are present in the immediate atmosphere. उस बच्चे के घर के माहौल में जो भी जिस भी भाषा में वर्नाक्युलर में बात हो रही है, उसका तुरंत असर बच्चे के ऊपर पड़ता है ना? जिस भी भाषा में पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, एक्सटेंडेड फैमिली, जिस भी लैंग्वेज में दे आर कम्युनिकेटिंग, द चाइल्ड इज रजिस्टरिंग एवरीथिंग. So definitely one very important thing is listening. Yes or no? Yes. Right? Next very important thing is what people are talking or they are speaking. तो स्पीकिंग के साथ ही साथ आएगा अपना, लिसनिंग के साथ ही साथ आएगा स्पीकिंग, द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन द इमीडिएट सराउंडिंग. ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग. You must have seen that most of the people get the newspaper in their mother tongue, in the language in which they are comfortable, isn't it? तो अगर चॉइस है, जैसे आप गुजरात में जाइएगा तो वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर गुजराती में ही लोग पढ़ना पसंद करेंगे, है ना? अगर आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वो भाई सामना जो ठाकरे जी का लेटर है ना, वो इट इज़ इन मराठी ओनली, राइट? सो इसी तरह से हर स्टेट, अभी तो हम अपने स्टेट, अपने कंट्री की ही बात कर रहे हैं, तो एवरी बिकॉज इट इज सेड इन आवर कंट्री दैट कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी, है ना? हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर ही, लाइक एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन लैंग्वेज. तो भाषा जो भी हमारी वर्नाक्युलर है, लोकल आम बोलचाल की भाषा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग न्यूज़पेपर भी या मैगजीन भी कौन सी रीड करना पसंद करते हैं? जो हमारे को कंफर्टेबल है, जो हमारी मदर टंग में है ना? तो अगर हमारे घर में बंगाली न्यूज़पेपर आ रहा है, ऑब्वियसली आई कैन रीड इट वेल. व्हेन आई एम रीडिंग इट, ऑल द सेंटेंस फॉर्मेशंस आर गेटिंग रजिस्टर्ड, कोडेड इन आवर ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड. तो रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट.
And lastly, of course, writing. It gives you practice, it gives you command on the given language. ठीक है, हमारे 4 ये मेन एक्शंस हैं जो कि हमारे को लैंग्वेज पे कमांड देता है. ठीक है, व्हाट इज इट? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, आपने भाषा के ऊपर आपकी जो भी मदर टंग है उस पर आपने कमांड कैसे किया? पैदा होते ही बोलने लग गए थे क्या? नहीं ना, पैदा होते ही पहला काम क्या किया? सुनना. सो चिल्ड्रन, स्टार्ट इन सारी 3 चीज़ों का आप कर लो. 2 चीज़ें आपकी आ रही हैं. इफ़ यू वॉच योर कार्टून्स इन इंग्लिश, देयर इज चॉइस. आप टॉम एंड जेरी देख रहे हो, मोटू पतलू देख रहे हो, डोरेमोन देख रहे हो, प्लीज वॉच सम कार्टून, नॉट लाइक द कार्टून्स दे आर शोइंग. मोस्ट ऑफ द कार्टून्स आर हॉरेबल दीज डेज. So anyways, whatever is your favorite cartoon, please watch it in English. ठीक है? क्यों? आप सुन भी रहे हो, आप है ना, आप देख भी रहे हो, तो डेफिनेटली आप कार्टून्स की तरह बोलते भी हो. यू लाइक सर्टेन डायलॉग्स. सो एनीवेज, दे आर स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग. स्टार्ट वॉचिंग योर कार्टून्स इन इंग्लिश. उससे अच्छा क्या होगा? अगर साथ ही साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ जाए तो कोई बुराई है? नहीं है ना. तो वॉच डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी चिल्ड्रन. देर आर वंडरफुल शोज. नेशनल जियोग्राफिक चैनल, ट्रैवल प्लस, these are wonderful channels with lot of general knowledge, right? and घर बैठे आपको दुनिया की सैर भी होती है. घने से घने जंगलों में भी आप पहुंच जाते हो और डेंजरस से डेंजरस एनिमल्स की भी लाइफस्टाइल देख लेते हो. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काम ही आएंगी. सो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग डिस्कवरी चाइल्ड, डिस्कवरी साइंस, है ना, डिस्कवरी चैनल, ट्रैवल चैनल्स एंड ऑल दैट. दे आर going to add to your vocabulary, to your knowledge, sentence formation, lot many benefits, right? दूसरा, आप क्या करेंगे? रीडिंग. You must be reading comics. Life has become in fact very easy if you think it in that way. ऐसा है कि हम लोग everything has pros and cons. ठीक है? तो अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमें मैगजीन नहीं मिल पा रही, सो वॉट, देर आर सो मेनी ई मैगजीन्स, ई स्टोरीज, है ना. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इज वेरी मच अवेलेबल. 4G इज वेरी मच देयर. इंटरनेट सर्विस इज वेरी मच देयर. तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, हमें आइस पे स्ट्रेन नहीं डालना है. गांठ बांधो. थैंक यू. ओके, आइस को हमें स्ट्रेन नहीं करना है और एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस से ही पढ़ना है, राइट? बट प्लीज स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश. कुछ एंटरटेनमेंट पढ़ लीजिए, कार्टून पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं तो अपना कोर्स पढ़ लो. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्लीज डू द लाउड रीडिंग. इसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं. आप लाउड रीडिंग जब आप करेंगे तो क्या होगा? आप बोल भी रहे हो, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, ये क्या चीज़ें होती हैं इस पर मैं कल बात करूँगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हो ही रही हैं. प्लस आप जो बोल रहे हो वो आपके कान में भी जा रहा है, एंड यू आर लिसनिंग, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज रजिस्टरिंग. सारा डेटा कोडिंग हो रही है. तो प्लीज get yourself involved in loud reading at least for 15 minutes every day. Best is साइंस की बुक उठाइए, इंग्लिश की बुक उठाइए, SST की बुक उठाइए, and start doing loud reading. ठीक है, पर बोरिंग नहीं बनाना है ना? बोरिंग नहीं बनाना है ना? तो प्लीज गो फॉर सम वेरी इंटरेस्टिंग बुक. आप 6th-7th में हो, आपके लिए नैन्सी ड्रू है, फेमस 5 है बाय एनेट ब्लैटन, रस्किन बॉन्ड की बहुत अच्छी, आई विल गिव यू सम नेम्स. ठीक है, तो आप ये आपको ये सब ई बुक मिलेगी.
यू डोंट हैव टू गो आउट, आपको घर बैठे पूरी दुनिया आपके फ़ोन के अंदर में है. सो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग दोज ई बुक्स एंड रीड देम लाउडली. 15-20 मिनट्स, ब्रेन इज डूइंग फंक्शन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. राइट? एंड राइटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. पावर ऑफ एक्सप्रेशन. आपको पता है अगर आपकी इंग्लिश सुधर गई तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? बताओ बताओ. ओके, आई हर्ड समथिंग. यस, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ेगी, आपकी मोटर स्किल्स अच्छी होंगी, आपका कमांड खुद पे अच्छा होगा. आपकी भाई यू आर स्टडिंग इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है या अगर आपका इंग्लिश पे कमांड है तो आप अपने आंसर्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकोगे एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, है ना. तो भाई होता क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ी ट्विस्टेड लैंग्वेज कर दी, आपको आता था लेकिन आप ठीक से समझ ही नहीं पाए एंड यू डिड रॉन्ग. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची थी, है ना. तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर राइटिंग पार्ट ऑल्सो. ठीक है. एंड लास्टली, not lastly but for today, I mean in the tips, lastly, start thinking in English. Oh, the most important thing, thinking in English. I'll put everything behind. First of all, I will ask you to start thinking in English. Very important. अभी आपने क्या सोचा? मैम के घर का बोर्ड थोड़ा छोटा है, वाइट अरे येलो क्रीमिश वॉल है एंड शी इज आस्किंग अस टू थिंक, है ना, वॉट एवर. और टुडे इज द सेकेंड क्लास, आई हैव टू रीड दिस. आई मीन आप बहुत कुछ सोच रहे हो, है ना. हम क्लास में भी प्रेजेंट रहते हैं, दिमाग तो पता नहीं कहाँ भागता रहता है ना, लाइट की स्पीड से भी तेज भागता है हमारा दिमाग, पता है कि नहीं. आऊँगी इस पर भी, ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट इफ वी आर थिंकिंग इन इंग्लिश, अभी हम किस भाषा में सोचते हैं? हम हिंदी में सोचते हैं, है ना, कि आज 19th में है, आज मैं ये पिक्चर देखूंगा, आज मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना है, आज पता नहीं मैम कौन सी एक्टिविटी कराएंगी, थिंग्स लाइक दैट. हम सब कुछ हिंदी में सोच रहे हैं ना. यस, है ना. तो अब हमें इंग्लिश में सोचना है. कैसे? दैट ओके, इट्स अ वाइट बोर्ड, शी इज यूजिंग अ ब्लैक कलर पेन, है ना. लाइट इज लिटिल रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द बोर्ड, देयर इज the wall color of the wall is cream, light yellow, whatever, है ना. And today I'm going to watch this movie, today I'm going to do this, today I'm going to do that, whatever. Please start thinking in English. I am telling you, do it. And आपके जितने भी डर हैं, जितना भी लो कॉन्फिडेंस है, trust me, everything is going to be sorted out. Take my word. You have to start thinking in English. Very important, right? Okay, now let's come to the activity. Today's activity is you are going to speak on my favorite toy. Just 5 lines. कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग कल से उठाएंगे, ठीक है, फ्रॉम yesterday's class. So today's activity is to speak 5 lines on my favorite again it's a French word, Favorite, my favorite toy. चलिए आगे बढ़ते हैं. So I have taken children 2 toys and what you have to do today is वीडियो बनाना ही है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. You have to speak 5 lines on your toy, right? So here I am taking toy number 1, just 2 example, one for girls, one for boys, no discrimination, but
आपकी चॉइस का ध्यान रखना मेरा काम है ना. चलिए, तो दिस इज माय फेवरेट टॉय. ओके, हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट? Good morning, everyone. Today, okay, again, I'm so sorry. Good morning, everyone. My name is Garima Srivastav. I'm a student of class 6, and today I'm going to speak on my favorite toy. So, this is my favorite toy. It's a soft toy, and it is a penguin, and I have named it Pingu, or I call it Pingu, and it is wearing a red colored hat, or rather cap, and it is carrying a Christmas stick, hockey stick, that candy, and it was gifted to me by my uncle. Thank you very much. Right? This is how you can add any line to it. You just describe it. It is like it is wearing a multicolored scarf, है ना, and its feet are yellow color, right? It has a yellow beak. Anything 5 lines आपको बोलनी है. Now I'll take the second toy, and this is okay. I'll begin how you have to do it. Please watch it. Good morning, everyone. My name is Garima Srivastav. I'm a student of class 7 at Army Public School, Old Kant. And today I'm going to speak on my favorite toy. So, my favorite toy is a car. It's a yellow colored car. Actually, it is inspired by the movie Bumblebee, the Transformers. And it is that Bumblebee car. It is yellow and black color car. And it moves very fast. It's a racing car, and it was gifted to me by my sister. Thank you very much. So children, this is how you are going to speak 5 lines on your favorite toy today. So with this, I finish off today's session and meet you live on Teams. And the basic agenda today was start watching English programs, right? Start reading your favorite comics, of course your favorite comics, plus your course books, and most importantly, start thinking in English. It's very important. Alright, so this is all for today. Thank you very much. Take very good care of yours. Thank you. God bless you.